हेलो बच्चों, क्या हाल है। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। आज एक और लेक्चर है, लेक्चर नंबर सेकंड, लैब प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल्स। अब तक मैंने बेटा आपको बताया कि व्हाट आर अल्कोहल्स, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स व्हिच कंटेन OH एज अ फंक्शनल ग्रुप आर नोन एज अल्कोहल्स। तो फिर if one hydrogen is removed from alkane, instead of that hydrogen atom we introduce OH group, then it is known as primary alcohol. For example, methanol, ethanol, propanol, 1-butanol, 1-pentanol. फिर उसके बाद मैंने कहा कि classification of alcohols, primary, secondary, tertiary alcohols. Primary alcohols are those alcohols in which OH group is attached to 1 degree carbon atom or primary carbon atom. Secondary alcohols are those alcohols, 2 degree alcohols are those organic compounds in which OH group is attached to 2 degree carbon or secondary carbon atom, whereas 3 degree carbon or whereas 3 degree or tertiary alcohols are those organic compounds in which OH group is attached to tertiary carbon atom or 3 degree carbon atom. On the basis of number of OH groups present in any organic compounds, they are of various types: monohydric alcohols, dihydric, trihydric, polyhydric alcohols. Monohydric alcohols are those alcohols which contain only one OH group, example methanol, ethanol, propanol. Dihydric alcohols are those organic compounds which contain two OH groups, for example, 1,2-dihydroxyethane, yeah, 1,1-dihydroxyethane. They are of two types. One is gymdiol, another one is glycol, ethylene glycol. Gymdiols are those dihydric alcohols in which two OH groups are attached to same carbon atom, example 1,1-ethane diol. As far as this gymdiols, glycols are concerned, like ethylene glycol is concerned, it contains two OH groups attached to two adjacent carbon atoms. Name of this organic compound is 1,2-ethane diol. And another trihydric alcohols are those alcohols in which three OH groups are present, for example, glycerine or 1,2,3-propane triol. And polyhydric alcohols are which contain many OH groups, example, sorbitol, mannitol. फिर मैंने आपको ये भी कहा कि अल्कोहल्स का जो आइसोमर है, अगर हम फंक्शनल आइसोमर की बात करेंगे तो अगर डाइमिथाइल ईथर और इथेनॉल को आपस में कंपेयर करेंगे, बोथ आर हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला but their chemical properties vary. As far as ethers are concerned, they will not get dissolved in water, but alcohols form hydrogen bond with water. So alcohols dissolve in water, they are miscible in water. तो फिर मैंने आपको ये भी कहा कि तो दे आर बोथ आर हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला, बट वेयर दे डिफर इन देयर फंक्शनल ग्रुप्स. अल्कोहल कंटेन OH ग्रुप एंड व्हेयरएज ईथर्स कंटेन O ग्रुप. फिर उसके बाद मैंने आपको कहा कि लैब प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल्स. लैब प्रिपरेशन में हमने देखा कि फर्स्ट हमने बेटा बनाया फ्रॉम अल्काइल हलाइड, जब उसको सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ ट्रीट किया, एक्वस सोडियम हाइड्रोक्साइड, वहां से हमने अल्कोहल बनाया. अगर हम बेटा मिथाइल क्लोराइड लेंगे या मिथाइल ब्रोमाइड को सोडियम हाइड्रोक्साइड से ट्रीट करेंगे, वहां से NaBr निकलेगा और मिथनॉल बनेगा या इथेनॉल. इसी तरह दूसरा मैंने कहा कि फ्रॉम ग्रिग्नॉड रिएजेंट ऑन ट्रीटिंग विद एल्डिहाइड्स, उस पे मैंने कहा कि ओनली एक्सेप्शन फॉर्मल्डिहाइड वो बनाता है प्राइमरी अल्कोहल, वो भी मैंने कहा. बट एज फार एज एस्टल्डिहाइड, प्रोपेनल्डिहाइड या ब्यूटरल्डिहाइड या वाल्व्रल्डिहाइड, यानी प्रोपेनल, इथेनॉल, इथेनॉल या प्रोपेनल या ब्यूटेनॉल, they form 2 degree alcohols. As far as ketones are concerned, we know that whenever they will come in contact with Grignard reagent, first adduct is formed. After the formation of adduct, this adduct undergoes hydrolysis and 3 degree alcohols are formed, plus hydroxy magnesium halides are also formed. ये मैंने बेटा आपको कहा. अब नंबर थर्ड है अल्कोहल्स का बेटा, ये लेक्चर नंबर थर्ड है, लेक्चर नंबर थर्ड है. इसमें बेटा अब हमने की फ्रॉम अल्काइल हलाइड्स. फर्स्ट वन हमने बेटा की फ्रॉम अल्काइल हलाइड्स यानी हैलो अल्केन्स. दूसरा बेटा किया फ्रॉम एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स, फ्रॉम एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स ऑन ट्रीटिंग विद ग्रिग्नार्ड रिएजेंट RMGX. ये बेटा हमने किए. अब अनदर वन आ रही है बेटा, अनदर वन है हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर्स. हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर्स.
पहले ये समझिए, हाइड्रोलिसिस का मतलब हो गया वाटर ऐड करना एस्टरों का। एस्टर आपको पता है बेटा, एस्टर ग्रुप ये है RCOO R। इसको बेटा क्या कहते हैं, अल्काइल अल्केनोइड। या आप मेरा चेक कीजिए फंक्शनल ग्रुप, इंट्रोडक्शन ऑफ फंक्शनल ग्रुप्स, तो उसमें मैंने एस्टर भी बताया आपको इससे डेरिवेटिव में, क्योंकि उसमें एसाइड हलाइड आता है, एसिड अमाइड आता है, उसमें बेटा ये आ रहा है एसिड अनहाइड्राइड आता है, एस्टर भी आता है। इसको बेटा अगर हम हाइड्रोलिसिस करेंगे, अगर एसिडिक मीडियम में भी कर सकते हैं तो उसको एसिड कैटलाइज्ड रिएक्शन कहेंगे हाइड्रोलिसिस। अगर बेस में करेंगे तो उसको बेटा बेस कैटलाइज्ड हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर्स कहेंगे। तो इसमें बेटा क्या होता है, चाहे आप एसिड ले लो, चाहे आप बेटा बेस ले लो, तो यहाँ पे बेटा क्या हो रहा है, इसमें इसमें क्या बनेगा, एक तो बनेगा RCOOH और बेटा बनेगा अल्कोहल। अगर यहाँ पे R डैश रखेंगे, ये बनेगा अल्कोहल। एक बनेगा बेटा एसिड और दूसरा क्या बनेगा, दूसरा बनेगा बेटा अल्कोहल। ये याद रखिएगा, व्हेनेवर एस्टर्स अंडरगोज हाइड्रोलिसिस, एस्टरों को जब हाइड्रोलिसिस होती है तो वहां से एक बनता है बेटा अल्कोहल और दूसरा क्या बनता है बेटा कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है। ये याद रखिएगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैंने लिया मिथाइल मिथाइल इथोनेट, क्योंकि इसको मिथाइल कहते हैं तो ये आ गया O8, इसको कहते हैं एस्टर को, ये आप चेक कीजिए मिथाइल इथोनेट। इसको बेटा अगर हाइड्रोलिसिस करेंगे एसिडिक या बेसिक मीडियम में, तो वहां से क्या बनेगा, एक बनेगा बेटा इथेनोइक एसिड और दूसरा बनेगा बेटा मेथनॉल। एक बन गया हमारा एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड, और दूसरा बन गया बेटा मेथनॉल। तो ये याद रखिएगा हमेशा, जब भी हम एस्टरों को हाइड्रोलिसिस करते हैं या एसिडिक या बेसिक मीडियम में, वहां से हम एक तो बनाते हैं बेटा कार्बोक्सिलिक एसिड्स और दूसरा हमें देता है अल्कोहल्स, ठीक है ना। तो इस तरह आप याद रखिए, ये यहाँ पे इस तरह याद रखिए। तो एस्टर्स आपने ले लिए, एस्टर फूलों में पाए जाते हैं, फ्रैग्रेंस जो फूलों की है वो ड्यू टू दिस प्रेजेंस ऑफ एस्टर्स। इनको हम वाटर के साथ ऐड करेंगे, ये आप याद रखिएगा, या एसिडिक या बेसिक मीडियम में। अगर एसिडिक में तो एसिड कैटलाइज्ड हाइड्रोलिसिस, अगर बेसिक में तो बेस कैटलाइज्ड हाइड्रोलिसिस। तो वहां से क्या बनता है, एक बनता है बेटा एसिड यानी कार्बोक्सिलिक एसिड और दूसरा क्या बनता है बेटा अल्कोहल। ये आप याद रखिएगा। अब देखेंगे कैसे। मैंने एग्जांपल इसमें बेटा दी मिथाइल इथोनेट, और यहां से बन गया इथेनोइक एसिड और दूसरा बन गया मिथनॉल या कार्बिनॉल, या उसको मिथाइल अल्कोहल कहते हैं। अब देखेंगे इसमें बेटा क्या होता है। देखिए अब अगर मैं यहां पे बेटा लूं यही CH3 C डबल बॉन्ड OOCH3, इस ग्रुप को बेटा क्या कहते हैं, एस्टर, एस्टर्स कहते हैं। तो इसको बेटा क्या कहते हैं, ये वाला लेंगे मिथाइल, तो इस वाले को क्या कहते हैं, मीथेनोइक एसिड होता है ना। ये याद रखिए। अगर आपका है CH3COOH, इसको क्या कहते हैं बेटा एस्टिक एसिड, यानी इथेनोइक एसिड कहते हैं इसको, इथेनोइक एसिड कहते हैं बेटा इसको, इथेनोइक एसिड कहते हैं। अगर यहाँ से बेटा मैं CH3 C डबल बॉन्ड O यहाँ पे मैं हाइड्रोजन निकालूंगा, वहां पे लगाऊंगा, ये इसको बेटा क्या कहेंगे मिथाइल। और जो ये आपका इथेनोइक एसिड है बेटा, ये कटेगा, एक एसिड कटेगा, एक की जगह पे आएगा बेटा 8, तो क्या आएगा, आएगा नाम फिर मिथाइल इथोनेट, मिथाइल इथेनोएट। क्या आ गया बेटा, मिथाइल इथेनोएट। इसको मैंने क्या किया, पहले मैं करूंगा बेटा कौन सी रिएक्शन, एसिड कैटलाइज्ड हाइड्रोलिसिस। पहले मैं लिखूंगा बेटा इसमें एसिड, एसिड कैटलाइज्ड hydrolysis, acid catalyzed hydrolysis of esters, acid catalyzed acid catalyzed acid catalyzed hydrolysis of esters बेटा, ठीक है ना। तो मुझे आप बताइए इसमें क्या ऐड करेंगे, वाटर, और क्या लेंगे एसिडिक मीडियम। तो क्या बनेगा बेटा, एक
एक बनता है CH3 C डबल बॉन्ड O OH, और दूसरा क्या बनता है बेटा, मिथनॉल। दूसरा बनता है मिथनॉल। एक बनता है बेटा इथेनोइक एसिड, इथेनोइक एसिड, दूसरा बनता है मिथनॉल जो मैंने कहा। अब मुझे इसमें बेटा क्या दिखाना है, मैकेनिज्म। अब देखेंगे इसमें बेटा, अगर मैं यहाँ पे लूंगा ये CH3 C डबल बॉन्ड O O CH3, ठीक है ना बेटा, तो मुझे बताओ यहाँ पे क्या करेंगे बेटा। इस तरह यहाँ पे है मिथाइल इथोनेट, तो मैंने एसिड लिया, एसिड कैटलाइजर, फॉर एग्जांपल HA लिया, कोई एसिड मैंने लिया, या HCl बेटा लिया फॉर एग्जांपल, यहाँ पे मैंने एसिड लिया। एसिड का काम क्या है बेटा, इसमें क्या हो जाएगा, शाबाश, वेरी गुड। तो क्या होगा इसमें, जब मैंने यहाँ पे बेटा क्या लिया एसिड, तो इसमें आपको पता है बेटा ये कि ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो कौन सा चार्ज आएगा, नेगेटिव। यहाँ पे कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव। तो ये क्या बनेगा बेटा, इसके बाद ये बनेगा ऐसे CH3 CO नेगेटिव, O नेगेटिव, यहाँ पे पॉजिटिव आ गया, ये क्या है यहाँ पे CH3, ठीक, ठीक है कि नहीं है, ठीक है ना। और ये H पॉजिटिव कहाँ जाएगा बेटा, ये जाएगा इधर, ठीक है ना। जब ये इधर जाएगा तो ये क्या बनेगा, ये बनेगा ऐसे CH3 C नेगेटिव पॉजिटिव क्या हो जाएगा, न्यूट्रलाइज OH, ये क्या आ गया OCH3, और क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज, ठीक है ना बेटा कि नहीं, ठीक है ना। एसिड कैटलाइज HCl ले लो, H2SO4 ले लो, ठीक है ना बेटा। तो यहाँ पे ये यहाँ तक आ गया समझ। अब इसके बाद बेटा क्या लेना है हमें, यहाँ पे क्या लेना था, और वाटर भी, या इस तरह बेटा H2O, ठीक है ना। अब मुझे बताइए यहाँ पे फर्दर क्या होगा, इसके बाद फर्दर होगा जो आपका ये CH3, ये इस तरह भी रख सकते हैं, ये इस तरह रखेंगे बेटा COCH3, यहाँ पे क्या है बेटा ये OH। अब वाटर क्या, वाटर के पास क्या होता है, लोन पेयर ऑक्सीजन के पास है, इसको क्या है, इस कार्बोकैटायन को डेफिशिएंसी, तो ये क्या बनाएगा इसके साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड। जब कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेगा तो क्या बनेगा, ये स्ट्रक्चर बनेगा इस तरह CH3C OCH3, और ये क्या बनेगा बेटा, ये बनेगा OH। कौन सा बॉन्ड बन गया, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। इस पे ऊपर कौन सा चार्ज चढ़ गया, पॉजिटिव चार्ज, ठीक है बेटा कि नहीं है, ठीक है ना। यहां तक ठीक है बेटा कि नहीं है, यहां तक आ गया ना समझ आपको मैंने क्या किया। सीधा यहाँ पे पाई बॉन्ड है, कार्बोनाइल ग्रुप है, इसमें ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, दैट्स व्हाई ऑक्सीजन एक्यूरेस डेल नेगेटिव, कार्बन एक्यूरेस डेल पॉजिटिव चार्ज। फिर उसके बाद जब एसिड कैटलाइज्ड रिएक्शन है, मतलब एसिड में हमने डाला तो प्रोटॉन यहाँ पे आएगा, OH बन गया, तो ये यहाँ पे कौन सा क्या जनरेट हो गया, यहाँ पे कार्बोकैटायन। अब कार्बोकैटायन अब वाटर को हाइड्रोलिसिस करनी है, हाइड्रोलिसिस का मतलब वाटर हमने लाया, तो ऑक्सीजन इसको क्या देगा बेटा, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसके ऊपर कौन सा चार्ज चढ़ेगा, पॉजिटिव चार्ज, ठीक है बेटा कि नहीं। जब ऑक्सीजन क्या है, अब मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव किससे है, ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो ये क्या लेगा, जब ये लेगा तो मुझे बताइए यहाँ पे क्या बनेगा बेटा, फिर ये बनेगा CH3COH, ठीक है ना, ये क्या है OCH3, यहाँ पे क्या आ गया, जब ये यहाँ पे पॉजिटिव था, जब इसके इलेक्ट्रॉन इसने लिया नेगेटिव पॉजिटिव क्या हो जाएगा, न्यूट्रलाइज, ये क्या बन गया OH, ठीक है बेटा। ये क्या निकला एज H पॉजिटिव, यहाँ पे क्या है बेटा, जब ये H पॉजिटिव निकलेगा तो वो कहाँ पे अटैक करेगा, ऑक्सीजन क्या बनाएगा इसके साथ, वो बनाएगा बॉन्ड, जब बॉन्ड बनाएगा यहाँ पे कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज, ठीक है बेटा कि नहीं है, पॉजिटिव चार्ज। अब मुझे फर्दर बताइए क्या होगा इसमें, ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन, ये क्या ले जाएगा यहाँ से, ये जब ये इलेक्ट्रॉन ले जाएगा नेगेटिव पॉजिटिव क्या हो गया, न्यूट्रलाइज, तो हमारा अल्कोहल बन गया, जो हमें चाहिए था अल्कोहल बन गया। अब यहाँ पे क्या रह गया बेटा, यहाँ पे रह गया ये CH3COH, और क्या है बेटा, जब ये यहाँ से निकल जाएगा तो मतलब इलेक्ट्रॉन ये यहाँ पे कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव, ये क्या है बेटा, इस तरह बनेगा, ठीक है ना। अब इसके बाद क्या होगा फर्दर बेटा, ये जो है यहाँ पे ये जो लोन पेयर है ये किधर जाएगा, ये जब जाएगा बेटा मतलब ये पॉजिटिव चार्ज है इस तरह, ये मान के चलिए बेटा ये यहाँ है पॉजिटिव चार्ज फॉर एग्जांपल,
ये क्या, ये देगा इसको, जब ये देगा बेटा तो यहाँ पे क्या आएगा, वैलेंसी 4 2 6 2, क्योंकि 4 2 6 2 8, तो हाइड्रोजन क्या निकलेगा एज, वो क्या निकलेगा एज प्रोटॉन। ठीक है बेटा कि नहीं है, क्योंकि जब ये यहाँ पे समझिए, जब ये इलेक्ट्रॉन देगा इस पे, इसके ऊपर कौन सा चार्ज आएगा बेटा, पॉजिटिव, इसके ऊपर कौन सा आएगा, नेगेटिव, नेगेटिव पॉजिटिव क्या हो जाएगा, खत्म। अब जब ये प्रोटॉन निकलेगा वो क्या करेगा, इसका चार्ज न्यूट्रलाइज, ये क्या बन गया, सी डबल बॉन्ड ओ एच, ये बन गया बेटा हमारा इथेनोइक एसिड। फिर से मैं समझाऊंगा, ये बन गया बेटा हमारा इथेनोइक एसिड। ठीक है ना, इसको नोट कीजिएगा। फिर से मैं थोड़ा समझाऊंगा, यही पे समझाऊंगा। Oxygen is more electronegative, that's why pi bond gets shifted towards oxygen atom and acquires del negative charge, whereas carbon acquires positive charge. In acidic medium, proton will attack on this oxygen and form OH, बन गया ये। Whereas कार्बोकैटायन जो जनरेट यहाँ पे हो गया, अब हाइड्रोलिसिस करनी है, वाटर क्या देगा इसको, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो इसके ऊपर कौन सा चार्ज चलेगा, पॉजिटिव। अब ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है हाइड्रोजन से, तो ये क्या निकालेगा, इसके 2 इलेक्ट्रॉन लेगा, तो इसका पॉजिटिव क्या हो जाएगा, न्यूट्रलाइज। H पॉजिटिव कहाँ पे आएगा, यहाँ पे लोन पेयर है 2, इसके साथ बनाएगा कौन सा बॉन्ड बनाएगा, कोऑर्डिनेट बॉन्ड, तो कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव। ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन, इसको खत्म करने के लिए चार्ज ये क्या लेगा यहाँ से, तो जब इलेक्ट्रॉन पेयर विद नेगेटिव आएगा, पॉजिटिव नेगेटिव क्या होगा, न्यूट्रलाइज, ये क्या बन गया, अल्कोहल बन गया। अब यहाँ पे बेटा कौन सा चार्ज चढ़ गया, पॉजिटिव चार्ज। अब वैलेंसी क्या है यहाँ पे बेटा, 2 4 2 6, ये इसको स्टेबल करने के लिए क्या देगा, इलेक्ट्रॉन पेयर। जब देगा इसके ऊपर कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव, इसके ऊपर नेगेटिव, मगर नेगेटिव पॉजिटिव क्या हो जाएगा, न्यूट्रलाइज। जब ये पॉजिटिव देगा, इसकी वजह से इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा बढ़ेगी, तो H निकलेगा एज, जो हमने एसिड का प्रोटॉन दिया था वो बाहर निकल गया, यहाँ पे क्या रह गए, 2 इलेक्ट्रॉन, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव क्या हो गया, न्यूट्रलाइज, ये क्या बन गया बेटा, CH3COOH, ये बन गया हमारा बेटा इथेनोइक एसिड। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही, ठीक है ना। अब देखिए बेटा, इसी में दूसरी रिएक्शन जो आती है इसमें, मतलब इसी का जो पार्ट है, इस तरह रखेंगे, मतलब ए पार्ट एसिड कैटालाइज्ड हाइड्रोलिसिस, और दूसरी है बेटा बेस कैटालाइज्ड। अब बेटा दूसरी क्या है, बेस कैटालाइज्ड हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर्स, हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर्स, बेस कैटालाइज्ड हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर्स। अब मुझे इसमें बेटा बताइए अब क्या होगा इसमें, ये जो हमने इसमें भी यही लेंगे एग्जांपल, CH3 C डबल बॉन्ड O, या हम इसमें बेटा लेंगे अब फॉर एग्जांपल C2H5 लेंगे, CH2 CH3 लेंगे, इसको क्या कहेंगे बेटा, वहां पे मिथाइल था, यहाँ पे क्या लेंगे बेटा, इथाइल इथेनोएट, इथाइल इथेनोएट। अब इसको किसके साथ ट्रीट किया बेटा, यहाँ पे उसमें एसिड HCl या H2SO4, यहाँ पे क्या लिया, और क्या लेना है बेटा, हाइड्रोलिसिस करनी है, यानी H2O या HOH। इसमें बेटा क्या बनता है, एक बनता है बेटा इसमें, उसमें एसिड बनता था, इसमें क्या बनेगा, साल्ट, सोडियम, ये सोडियम एस्टेट बनेगा बेटा, और दूसरा क्या बनेगा बेटा, C2H5OH, या बेटा इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, CH3CH2OH, इसको बेटा कहेंगे इथेनॉल, इसको क्या कहेंगे बेटा, इसको कहेंगे इथेनॉल। ठीक है कि नहीं है, नाम साथ साथ लिखेंगे, इसका नाम क्या है बेटा, सोडियम एस्टेट, सोडियम एस्टेट, इसको क्या कहेंगे बेटा, इथेनॉल। सो इसमें क्या लिखेंगे, वेन इफ, उसमें भी इसी तरह लिखना, इफ इथाइल इथेनोएट, if ethyl ethanoate undergoes hydrolysis in basic medium, yeah, in presence of sodium hydroxide, formation of alcohols, and and sodium carboxylates are formed, यानी सोडियम एस्टेट और फॉर्म्ड। ठीक है बेटा कि नहीं, देखेंगे इसमें भी अब क्या,
इसमें भी आपने देखा कि ये क्या आएगा CH3CO, जब ये टूटेगा ये क्या देगा N पॉजिटिव, और क्या देगा OH नेगेटिव। N पॉजिटिव यहाँ पे ये क्या आएगा Na पॉजिटिव बन गया ये, और ये क्या आएगा यहाँ पे बेटा ये जो है ये एक तो बन गया CH3CONA, ठीक है बेटा कि नहीं, हो गया ये खत्म। फिर क्या आ रहा है इसका बेटा वाटर जो हम ले रहे हैं ना बेटा, तो उसमें क्या आएगा इसके साथ कुछ। अब देखेंगे बेटा इसका मैकेनिज्म देखेंगे। देखिए अब इसमें देखिए अब इसमें मैकेनिज्म यही लेंगे बेटा CH3 C डबल बॉन्ड O CH2 CH3। अब इसमें भी बेटा क्या हो रहा है, यही सेम, ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो नेगेटिव चार्ज यहाँ पे क्या आएगा पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे क्या है बेटा लोन पेयर। अब इसमें भी क्या हो जाएगा बेटा, जब ये क्या आएगा CH3C, ये क्या आएगा, ये क्या आएगा नेगेटिव, ये क्या आएगा पॉजिटिव, ये क्या आ गया O, ये क्या है बेटा CH2 CH3। अब क्या लिया हमने सोडियम हाइड्रोक्साइड, वो टूटेगा वो क्या देगा Na पॉजिटिव और क्या देगा OH नेगेटिव, ठीक है ना बेटा। अब OH नेगेटिव कहाँ पे, उसमें प्रोटॉन जा रहा था इधर, अब ये कहाँ जाएगा बेटा, ये कहाँ पे जाएगा, ये जाएगा बेटा इधर, क्योंकि ये कार्बोकैटायन है, ये OH है। तो इसमें बेटा क्या बनेगा, यहाँ से ये देखेंगे ये बनेगा CH, या यहाँ पर ही देखेंगे बेटा ये बनेगा CH3CO नेगेटिव है, यहाँ पे ये क्या आएगा बेटा OH, ये क्या है यहाँ पे O, ये क्या है CH2 CH3, ठीक है बेटा कि नहीं है, बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही, ठीक है ना। तो यहाँ पे इस तरह ये आ गया, यहाँ पे हमने क्या किया, ये OH जो है बेटा ये कहाँ पे चला गया, ये गया इधर, ठीक है ना बेटा, यहाँ तक ठीक है ना। अब क्या करेंगे इसके बाद, अब हमें क्या करनी है बेटा हाइड्रोलिसिस। हाइड्रोलिसिस जब करेंगे बेटा, हाइड्रोलिसिस का मतलब क्या हो गया बेटा H पॉजिटिव OH नेगेटिव, ठीक है ना, क्योंकि हमें पता है यहाँ से ये निकल गया। तो ये यहाँ पे बेटा इस तरह भी देख सकते हैं, यहाँ पे अगर देखिए अब यहाँ पे इस तरह कर सकते हैं बेटा, तो मुझे बताइए आप, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है, यहाँ पे OH है ये, ठीक है ना। अगर ये बेटा हाँ, अब जो हमारे पास जो H2O है, अब H2 जो O है, तो यहाँ पे अगर ये जाएगा बेटा इधर इस तरह, ये फॉर एग्जांपल ये जाएगा इधर, ठीक है ना। अगर ये जाएगा इधर तो वैलेंसी क्या हो जाएगी इसकी, ये आएगा, क्योंकि जब ये देगा पॉजिटिव नेगेटिव क्या हो जाएगा न्यूट्रलाइज, मतलब अगर यहाँ पे बेटा ये आएगा इस तरह, ये अगर देगा इस तरह इसको इलेक्ट्रॉन, या इस तरह भी कर सकते हैं बेटा, यहाँ पे इस तरह भी कर सकते हैं बेटा, इस तरह, यहाँ पे इस तरह होगा ये, देखिएगा। देखिए अब ये जो है CH3CO नेगेटिव, ये रखिए Na पॉजिटिव, ठीक है ना, ये क्या आ गया बेटा, या इसी तरह ये OCH2 CH3, ठीक है ना बेटा, और ये क्या आ गया बेटा OH किसके पास आ गया, OH आ गया इसके पास, ठीक है ना। अब हमारे पास क्या है, इसको भी हाइड्रोलिसिस करनी है, यानी H पॉजिटिव OH नेगेटिव लेना है, ठीक है ना। वो क्या करेगा, वो करेगा बेटा इस तरह CH3CO, ये क्या है बेटा Na, यहाँ पे क्या है बेटा OH, वो क्या आएगा, ये O है, यहाँ पे क्या है लोन पेयर, वो क्या आएगा CH2 CH3। तो ये क्या देगा, जब ये प्रोटॉन आएगा तो वो किधर जाएगा, यहाँ पे कौन सा चार्ज आएगा बेटा पॉजिटिव चार्ज। तो अब इसमें क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो ये निकल गया, तो ये क्या निकल गया, ये बन गया CH3 CH2, क्योंकि जब इलेक्ट्रॉन पेयर आएगा नेगेटिव पॉजिटिव न्यूट्रलाइज, ये बन गया इथेनॉल या इथाइल अल्कोहल, इथेनॉल या इथाइल अल्कोहल। यहाँ पे क्या बन गया बेटा फिर CH3CO, ये बेटा है Na, ये क्या है बेटा OH, यहाँ पे कौन सा चार्ज आएगा पॉजिटिव, पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव के पास कौन आएगा बेटा, ये यहाँ पे पॉजिटिव डेवलप होगा, और ये क्या आएगा OH जाएगा इधर,
तो ये क्या बनेगा, ये बनेगा बेटा CH3CO, ये छोड़िए Na यहाँ पे क्या है बेटा, ये आ गया OH, यहाँ पे क्या आ गया ये बेटा, ये आ गया OH। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? ठीक है ना बेटा। सेम इसमें भी यही होगा, सेम इसमें भी यही होगा बेटा। यहाँ पे क्या बन गया अब ये, हाँ, अब जो हमने यहाँ से बेटा ये क्या बन गया हमारा इथेनॉल, इथेनॉल ट्रीट। तो यहाँ पे हमारा बेटा क्या आ गया, OH आ गया। ठीक है ना। यहाँ से क्या निकलेगा बेटा, ये वाटर मॉलिक्यूल निकलेगा, ये वाटर मॉलिक्यूल निकलेगा। यहाँ पे था ये OH था यहाँ पे बेटा, यहाँ पे क्या निकलेगा, ये वाटर मॉलिक्यूल निकलेगा। जब वाटर मॉलिक्यूल निकलेगा तो ये क्या बन गया बेटा, ये बन गया CH3C डबल बॉन्ड ONA। तो ये क्या बन गया, ये बन गया बेटा CH3CONA, ये बन गया CH3CONA, और क्या बन गया बेटा, और बन गया इथेनॉल C2H5OH, और बन गया इथेनॉल, क्योंकि हमने ये लिया था, एक बन गया ये। अब इसमें भी बेटा ये है कि अगर ये इस तरह इलेक्ट्रॉन यहाँ पे बेटा देगा बॉन्ड, तो यहाँ से क्या निकलेगा फिर बेटा, प्रोटॉन। वो कहाँ पे अटैक करेगा, वो यहाँ पे अटैक करेगा, वाटर निकलेगा, वही स्टेप जो मैंने पीछे वाले में बताया। तो ये आगे जाएगा, तो इसमें भी बेटा क्या बनता है, एक बनता है सोडियम स्टेट, और दूसरा क्या बनता है बेटा, दूसरा बनता है इथेनॉल यानी इथाइल अल्कोहल। ठीक है ना बेटा। तो आ गई तीसरी रिएक्शन भी, हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर्स बाय एसिड कैटलाइज्ड रिएक्शन, और बेटा क्या है, बेस कैटलाइज्ड रिएक्शन। ये मतलब इसमें दो पार्ट, एसिड कैटलाइज्ड और बेस कैटलाइज्ड रिएक्शन। अब एक और है बेटा फर्मेंटेशन ऑफ कभी पूछा जा सकता है, फर्मेंटेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, फर्मेंटेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। चौथी वन है ये फोर्थ वन है, फोर्थ प्रिपरेशन है ये। फोर्थ वन है ये। तो इससे मैं आपको बताऊंगा बेटा, अगर हमारे पास एक ग्लूकोज सोल्यूशन है, मतलब पानी में हमने ग्लूकोज डाला, हमारे पास ग्लूकोज सोल्यूशन है, ठीक है कि नहीं है, हमारे पास ग्लूकोज सोल्यूशन है। अगर बेटा इसमें यीस्ट डालेंगे, यीस्ट का मतलब ये सिंगल सेल्ड प्लांट है, तो इसको क्या, अगर इसको इसमें डालते हैं, देखते हैं इसमें बेटा क्या होता है फिर, ये देखते हैं, एक तो इसमें फ्रॉथ बनता है, जाग बन जाती है, और थोड़ा बहुत इसमें क्या हो जाता है, उबल जाता है, इफरवेसेंस होती है इसमें, ठीक है कि नहीं है, बबल्स निकलते हैं इसमें जब ये पाया गया। तो इसी को फर्मेंटेशन का फर्मेंटेशन आ गया फर्वर से, मीन्स टू बॉयल। तो इसका मतलब जब हमने इसमें यीस्ट डाला तो उसकी वजह से इसमें क्या हो गया बेटा, इफरवेसेंस हो गई, जार जैसी बन गई, और थोड़ा उबलना शुरू हो गया। ये पाया गया कि अगर हमने ग्लूकोज लिया, फॉर एग्जांपल C6H12O6, इसको ग्लूकोज कहते हैं, ठीक है बेटा कि नहीं है, इन प्रेजेंस ऑफ क्या बेटा, यीस्ट, यानी हम यूजुअली लेते हैं जाइमीज। तो वहां से बेटा क्या बनता है, एक बनता है C2H5OH, और बनता है 2 टाइम्स कार्बन डाइऑक्साइड। जो बबलिंग होती है वो किसकी इफरवेसेंस होती है बेटा, इसकी वजह से, कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से। पहले देखेंगे बेटा इसको, इसमें कितने कार्बन है, 4, तो इस 4 और 2 कितने हो गए, 6, 12 हाइड्रोजन है, तो 10 और 2 कितने हो गए, 12। ऑक्सीजन कितने हैं, 2 यहाँ पे, 4 यहाँ पे, आ गए बेटा 6। बात समझ में आ रही है। तो इसका मतलब इन्होंने देखा ये कि अगर हम ग्लूकोज में क्या डालते हैं बेटा, मगर अब इसमें बेटा पाया गया है ये कि जो यीस्ट होता है, इसमें जो एंजाइम्स, एंजाइमों को इकट्ठे मिला के उनको फर्मेंट्स कहते हैं बेटा, ठीक है कि नहीं है। तो वो मतलब जो जाइमेस है वो एक एंजाइम नहीं है, ये बहुत सारे हैं, ठीक है कि नहीं है। ये किस में है, यीस्ट में पाए जाते हैं। और ये मैंने आपको सिंपल एग्जांपल ये दी कि अगर हम एक ग्लूकोज सोल्यूशन लेंगे, अगर उसको ऐसे रखेंगे उसको कुछ नहीं होगा। जो ही हम उसमें यीस्ट डालते हैं, वो भी कहा सिंगल सेल प्लांट सेल है ये, अगर इसको इसमें डालेंगे तो इसके बाद क्या होता है, इसमें फ्रॉथ होता है और बॉयल होता है, फर्मेंटेशन आ गया, फर्वर मीन्स टू बॉयल। तो वहां से हम बेटा देख रहे हैं कि इसमें इथेनॉल बन गया, और जो इफेरेसेंस होती है, जो बबलिंग होती है, वो इट इज बिकॉज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये भी एक है बेटा कि इसमें
ये जो है क्या कहते हैं इसको, तो इसका मतलब ये पाया गया कि इसमें जो एंजाइम, इसको एंजाइम कहते हैं, एंजाइम कैटालाइज, ये पाया गया है किसमें, यीस्ट में पाया गया है, ठीक है बेटा कि नहीं है। उसकी वजह से ही ये ये कन्वर्ट हो गया किसमें, इथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही। सिंपल आप याद रखिए कि अगर हमारे पास ग्लूकोज सोल्यूशन, अगर उसको ऐसे रखेंगे कुछ नहीं होगा, जो हम उसको यीस्ट डालते हैं तो उसमें क्या हो जाता है बेटा, फ्रॉथ और बॉयल हो जाता है, इफेरेसेंस होती है, कार्बन डाइऑक्साइड जनरेट होता है और वहां से इथेनॉल बनता है। ये एक और है बेटा। सो इसमें क्या होता है, ड्यूरिंग फर्मेंटेशन, ड्यूरिंग fermentation during fermentation, glucose glucose in presence of zymes and enzyme convert converts converts it into ethanol and carbon dioxide। ठीक है बेटा जी, बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही। तो ये बेटा हो गई आपका चौथा। फिफ्थ वन है by by a reduction of by a reduction of aldehydes and ketones, by a reduction of aldehydes and ketones। एल्डिहाइड आपको पता है जिसमें बेटा RCHO ग्रुप होता है, और कीटोन आपको पता है फंक्शनल ग्रुप्स, मेरे इंट्रोडक्शन ऑफ फंक्शनल ग्रुप चेक कीजिए, मैंने वहां बताया है इनकी इंट्रोडक्शन। कहते हैं कि अगर बेटा इनको रिडक्शन करेंगे, अगर बेटा इनको क्या करेंगे, रिडक्शन का मतलब क्या हो गया, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, ऑक्सीडेशन रिडक्शन हमने पढ़ा है, लगभग 90% वो कंप्लीट है। अब इसमें एक दो लेक्चर है, मुझे सिर्फ उसमें बेटा दिखाना है आपको ये इक्वलेंट वेट का मुझे बताना है। तो इसमें अगर इन प्रेजेंस ऑफ निकल, प्लैटिनम, रुथेनियम, ठीक है बेटा कि नहीं है, अगर ये लेंगे तो ये क्या करता है, इसको एब्जॉर्ब करता है और यहाँ पे पहुंचाता है, तो यहाँ से एल्डिहाइड से क्या बनेगा बेटा, 1 डिग्री अल्कोहल। क्या बनेगा, 1 डिग्री अल्कोहल। देखिए कैसे, देखो यहाँ पे बेटा क्या आएगा, हाइड्रोजन, क्योंकि जहां पे डबल बॉन्ड होता है वहां पे क्या आएगा बेटा, हाइड्रोजन, क्योंकि निकल प्लैटिनम ये क्या करता है, कैटलिस्ट इज अ केमिकल सब्सटेंस which enhances or retards the rate of a chemical reaction but itself remains unchanged at the end of the reaction। इसमें ये क्या करता है, हाइड्रोजन गैस को एब्जॉर्ब करता है और कहाँ पहुंचाता है, यहाँ पे ये खत्म हो जाएगा, यहाँ पे H आएगा, यहाँ पे H आएगा बेटा, ठीक है कि नहीं। क्या बन गया, सीधी सी बात है ना, ये जो है C डबल बॉन्ड OH, जब दो हाइड्रोजन आ गए नेसेंट हाइड्रोजन, तो ये क्या इधर आएगा, ये डबल बॉन्ड खत्म हो गया, क्या बन गया बेटा, RCH2OH। सिंपल, ठीक है ना। एग्जाम्पल लीजिए इसमें बेटा, एग्जाम्पल क्या ले, तो ये भी याद रखा, अगर आप अब एग्जाम्पल क्या लोगे आप बेटा, मतलब CHO, ये क्या है, एस्टल्डिहाइड, एस्टल्डिहाइड या इथेनॉल इसका IUPAC नाम है। तो इसको क्या करेंगे, हाइड्रोजन के साथ इन प्रेजेंस ऑफ निकल या प्लैटिनम, तो वहां से बेटा क्या बनेगा, CH3CH2OH। तो क्या बन गया बेटा, इथेनॉल। क्या बन गया बेटा, इथेनॉल बन गया। बात समझ में आ रही कि ना। आप कोई भी आप बेटा लीजिए CH3CH2CHO लीजिए, यानी प्रोपेनॉल या प्रोपायोनॉल्डिहाइड, इसको भी आप रिडक्शन कीजिए। रिडक्शन का मतलब क्या हो गया, निकल लीजिए, प्लैटिनम लीजिए, रुथेनियम लीजिए, तो क्या बनेगा, CH3CH2OH। तो हो गई रिडक्शन, ठीक है कि नहीं है। एल्डिहाइड से ये अल्कोहल कन्वर्ट हो गया, तो इसका मतलब रिडक्शन में एल्डिहाइड्स क्या बनाते हैं बेटा, बनाते हैं अल्कोहल्स। A फॉर एल्डिहाइड, A फॉर अल्कोहल, ऐसे याद रखिए, ठीक है बेटा कि नहीं है। मैकेनिज्म सीधी सी बात है, हाइड्रोजन आएगा तो ये सीधी सी बात है बेटा, ये जो है RC, अभी मैंने कहा अगर इस तरह रखेंगे, ये इस तरह है, यहाँ पे है, यहाँ पे है, हाइड्रोजन दो आएंगे इसके साथ, ये इसके साथ हो गया, तो ये बन गया R, ये क्या बन गया CH2, और क्या बन गया, ये हमारा तैयार, ठीक है ना। अब बेटा हम लेंगे इसी का, अब ये तो हो गई रिडक्शन ऑफ एल्डिहाइड बेटा। अब कीटोन लेंगे बेटा, कीटोन हो गया बेटा ये। अब कीटोन के किसके साथ ट्रीट करेंगे बेटा, हाइड्रोजनेशन। तो इन प्रेजेंस ऑफ निकल, प्लैटिनम, वो मैंने आपको कहा, तो इसमें क्या बनेगा बेटा, इसमें सीधा बनेगा RCHOH
और क्या बनेगा आर। ठीक है बेटा कि नहीं? क्या बन गया इसमें बेटा? आर सी एच। कौन सा अल्कोहल बन गया? 2 डिग्री अल्कोहल। कौन सा अल्कोहल बन गया बेटा? 2 डिग्री, या इसको क्या कहेंगे? सेकेंडरी अल्कोहल। सेकेंडरी अल्कोहल। सेकेंडरी अल्कोहल बन गया। कैसे आप बेटा बताओगे? यहाँ पे अगर आपसे कोई भी पूछेगा तो कहना है कि ये जो है आर सी, ये इस तरह है बेटा, ये इस तरह भी रख सकते हैं। ये क्या है? आर डैश। ये डिफरेंट भी हो सकता है, मतलब एसीटोन ले सकते हैं या इथाइल मिथाइल कीटोन ले सकते हैं। तो यहाँ पे बेटा कितने हाइड्रोजन आ गए? 2 हाइड्रोजन। ठीक है ना बेटा? एक जाएगा इधर तो H, एक जाएगा इधर। ठीक है ना? तो क्या बन गया? ये बन गया ना इस तरह आर सी। अगर ये यहाँ पे रखेंगे आर, ओ एच यहाँ पे लेंगे, तो कौन सा अल्कोहल बन गया बेटा? 2 डिग्री अल्कोहल। तो इसका मतलब कीटोन्स क्या बनाते हैं अगर उनको रिडक्शन होती है? कीटोन्स ऑन रिडक्शन क्या बनाते हैं बेटा? वो बनाते हैं 2 डिग्री अल्कोहल्स। क्या बनाते हैं बेटा? 2 डिग्री अल्कोहल्स बनाते हैं। 2 डिग्री अल्कोहल्स बनाते हैं। एग्जाम्पल दीजिएगा। यही CH3, C डबल बॉन्ड O CH3, इसको क्या कहते हैं बेटा? एसीटोन। इसको बेटा क्या कहते हैं? एक और नाम डाइमिथाइल कीटोन। डाइमिथाइल कीटोन, या इसको एक और नाम क्या कहते हैं? 1 2 3 2 प्रोपेनोन। इसको क्या कहते हैं बेटा? 2 प्रोपेनोन। इसको अगर रिडक्शन करेंगे हाइड्रोजन के साथ इन प्रेजेंस ऑफ निकल प्लैटिनम, ठीक है ना, तो ये क्या बनेगा? CH3C। ये क्या बनेगा बेटा? OH। ये क्या आएगा यहाँ पे? H। ये क्या आएगा? CH3। इसका नाम क्या है? आइसोप्रोपेनॉल, या इसको क्या कहेंगे? 2 प्रोपेनॉल, या एक और नाम क्या कहेंगे बेटा? 1 2 3, यानी 2 प्रोपेनॉल कहेंगे। 2 प्रोपेनॉल, या बेटा आइसोप्रोपेनॉल, या बेटा क्या कहते हैं एक और नाम? आइसोप्रोपाइल अल्कोहल, या 2 हाइड्रोक्सीप्रोपीन भी कहते हैं। ठीक है बेटा कि नहीं है? ठीक है ना? ये आ गया समझ। तो इसका मतलब ये है कि कीटोनों को अगर रिडक्शन करेंगे वहां से क्या बनेंगे? 2 डिग्री अल्कोहल्स। अगर आप बेटा किसको करोगे रिडक्शन? एल्डिहाइडों को अगर आप रिडक्शन करोगे, एल्डिहाइडों को अगर आप बेटा क्या करोगे? रिडक्शन, वहां से क्या बनेगा फिर? वहां से क्या बनेगा बेटा? अगर एल्डिहाइडों को प्रिपरेशन करोगे तो वहां से क्या बनते हैं? प्राइमरी अल्कोहल्स, यानी 1 डिग्री अल्कोहल्स। 1 डिग्री अल्कोहल्स। बात समझ में आ रही कि नहीं? हो सकता है कभी आपको नीट में पूछा जा सकता है, अगर आपके पास बेटा ये है CH3CH, इसको बेटा कहते हैं 2 ब्यूटीनल। इसको क्या कहते हैं? 2 ब्यूटीनल। और इसको कहते हैं कॉमन नेम क्रोटोनल डिहाइड। इसको क्या कहते हैं बेटा? क्रोटोनल डिहाइड। ठीक है ना? कहते हैं कि अगर इसको रिडक्शन करेंगे 2 टाइम्स हाइड्रोजन इन प्रेजेंस ऑफ निकल प्लैटिनम, ये रिड्यूस दोनों को करेगा, इसको भी बेटा इसको भी। तो यहाँ पे क्या बनेगा? ये बनेगा CH3CH2, ये आ सकता है। और क्या बेटा बनेगा? 3 4 CH2OH। इसका नाम क्या है? 1 2 3 4 1 ब्यूटानॉल। 1 ब्यूटानॉल, ये IUPAC नाम है। इसका कॉमन नेम क्या आएगा बेटा? एन ब्यूटाइल अल्कोहल। एन ब्यूटाइल अल्कोहल। एन ब्यूटाइल अल्कोहल। ठीक है बेटा कि नहीं? तो इसमें क्या हो गया ये याद रखिएगा, जहां पे ये डबल बॉन्ड है और ये जो CH हो इसको भी रिड्यूस कर रहा है, इसको भी रिड्यूस कर रहा है, तभी मैंने 4 हाइड्रोजन दिए। ये इस तरह बेटा है CH3CH, इस तरह मैं रखूंगा CH। ये क्या है बेटा? C डबल बॉन्ड OH। ठीक है ना? यहाँ पे बेटा क्या था? 2 हाइड्रोजन आएंगे तो जुड़ गए, हो गया CH3CH2CH2। यहाँ पे जुड़ गया तो एक हाइड्रोजन, एक यहाँ पे, तो ये बन गया हमारा। इसको 2 ब्यूटीनॉल कहते हैं। क्यों 2 ब्यूटीनॉल कहते हैं? क्योंकि 2 पे क्या है? 2 ब्यूटीन, यानी ब्यूटीन है ना, ये ब्यूटीन या ब्यूट। ब्यूट मीन्स 4 कार्बन, 2 मीन्स पोजीशन, 2 और 3 में डबल बॉन्ड है, 2 इन, एक पे एल्डिहाइड ग्रुप है, तो ये आ गया ब्यूटोइन। इसको 4 हाइड्रोजन यहाँ पे मैंने किया तो ये रिड्यूस हो गया, तो इसलिए क्या बन गया? बनाया एन ब्यूटाइल अल्कोहल या 1 ब्यूटानॉल। यानी इस तरह 1 2 3 4, ये 1 2 3 कार्बन, और बेटा क्या आ गया? तो आगे 1 2 3 4 बॉन्ड लाइन नोटेशन। ठीक है बेटा कि नहीं? तो ये आपका आ गया एल्डिहाइड, और ये भी मतलब एक और, मतलब एक तो आ गया बेटा फ्रॉम अल्काइल हलाइड्स, यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड को अगर हेलो अल्कीनों के साथ मिलाएंगे तो वहां से अल्कोहल्स बन गए। फिर मैंने आपको एल्डिहाइड कहा, उसमें फॉर्मल्डिहाइड सिर्फ 1 डिग्री अल्कोहल बनाता है और ग्रिग्नॉड रिएजेंट के साथ, और एस्टल्डिहाइड, प्रोपेनॉल्डिहाइड या प्रोपेनॉल
ब्यूटेनॉल, वो क्या बनाते हैं 2 डिग्री अल्कोहल्स। मगर अगर हम कीटोन लेते हैं वो क्या बनाते हैं टर्शरी, वो भी हो गया। तीसरा फिर आपका बेटा हो गया इसमें आपने की एसिड कैटालाइज्ड हाइड्रोलिसिस और बेस कैटालाइज्ड हाइड्रोलिसिस, वहां से आपने देखा कि एसिड और अल्कोहल बनता है। जब OH देंगे तो बेसिक मीडियम रखेंगे तो वहां पे बेटा आपको पता है सोडियम एसिड बनता है और अल्कोहल बनता है। फिर आपने फर्मेंटेशन कहा मैंने आपको, बेंजोजाइमेस एंजाइम, तो उसमें भी आपको मैंने कहा कि क्या बनता है, उसमें इथेनॉल ही बनता है। और फिर उसके बाद मैंने आपको बेटा कहा ये कि रिडक्शन ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। अनदर वन है, तो कितने आ गई, 2 3 4 5 छठी भी इसमें है बेटा, एक और लेक्चर जाएगा इसमें, छठी। सिक्स्थ है बाय hydration of alkenes, sorry, by hydration of alkenes, by hydration of alkenes, ठीक है ना बेटा। तो बाय हाइड्रेशन ऑफ अल्कीन्स में एक तो इसमें डायरेक्ट मेथड है, दूसरा बेटा इनडायरेक्ट मेथड है, ठीक है बेटा कि नहीं है। इसमें पहले देखेंगे बेटा अल्कीन यूजुअली हम क्या लेते हैं जिसमें डबल बॉन्ड होता है, यूजुअली हम क्या लेते हैं बेटा इथाइलिन यानी CH2 डबल बॉन्ड CH2। इसको अगर बेटा हाइड्रेशन करेंगे, हाइड्रेशन का मतलब क्या हो गया बेटा वाटर का ऐड करना। जब वाटर ऐड करेंगे तो यहाँ पे बेटा क्या बनता है, ये बनाता है अल्कोहल CH3, मैं अभी बताऊंगा आपको। ये डायरेक्ट है, ठीक है बेटा कि नहीं है। दूसरा बेटा इनडायरेक्ट, जिसमें हम क्या लेते हैं, जिसमें हम यही अल्कीन देते हैं और उसमें हम बेटा क्या लेते हैं, पहले H2SO4, पहले हमें बेटा बनता है यहाँ पे ये बनेगा, यहाँ पे बेटा ये बनेगा OSO3H, ये बनेगा बेटा। फिर उसके बाद इसको क्या करते हैं हाइड्रोलिसिस इसको करते हैं, तो वहां से फिर बेटा हमारा क्या बनता है CH3, यही CH3 CH2OH। हालांकि इसमें अभी और भी है हाइड्रोबोरेशन या वो अलग लेक्चर में बताऊंगा, फिलहाल मैं बेटा आपको ये बताऊंगा। एक तो डायरेक्ट हाइड्रेशन है, एक तो डायरेक्ट हाइड्रेशन है, डायरेक्ट हाइड्रेशन, और दूसरा बेटा क्या है इनडायरेक्ट, मतलब इसमें पहले हम सल्फ्यूरिक एसिड लेते हैं, फिर वहां से उसको फिर हीट करते हैं और हाइड्रोलिसिस करते हैं, तो वहां से बनाते हैं, ठीक है बेटा कि नहीं, इसको नोट कीजिएगा। देखिए अब देखिए इसमें बेटा, अगर मैं लूंगा डायरेक्ट या इनडायरेक्टली लेंगे या डायरेक्टली लीजिए। फॉर एग्जांपल मैंने बेटा लिया CH2 और इसको मैंने ट्रीट किया किसके साथ, सल्फ्यूरिक एसिड के साथ। तो मैंने कहा आपको कि यहाँ पे पहले क्या बनेगा, मैंने कहा कि यहाँ पे, अब पहले मैं आपको मैकेनिज्म भी बेटा दिखाऊंगा फिर देखेंगे। अगर मैं बेटा लूंगा यहाँ पे, ये हमारा इथाइलिन है, यानी इसको बेटा कहते हैं इथाइलिन, या इसको बेटा कहते हैं एथीन। इसको बेटा अगर ट्रीट करेंगे किसके साथ, सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, HOSO3H, ठीक, ठीक है ना बेटा, ठीक है कि नहीं है। जब सल्फ्यूरिक एसिड इसके पास आएगा तो यहाँ से बेटा क्या टूटेगा, एसिड हमेशा टूटता है इन द फॉर्म ऑफ H पॉजिटिव, और क्या आएगा बेटा OSO3H नेगेटिव, इस तरह है। तो अब प्रोटॉन क्या जाएगा बेटा, फर्क यहाँ जाए या यहाँ जाए, क्योंकि ये कौन सा अल्कीन है बेटा, ये सिमेट्रिकल अल्कीन है, इसमें मार्कोन को रूल नहीं अप्लाई होता है। तो मुझे बताइए ये क्या होगा इसमें बेटा, ये जाएगा फॉर एग्जांपल ये गया इधर, अगर ये इधर गया तो जब ये इधर जाएगा तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन पेयर किसकी ओर आएंगे बेटा, तो ये बनेगा ऐसे C। अब यहाँ पे मैं नहीं दिखाऊंगा क्योंकि अब इलेक्ट्रॉन दोनों ले जाए, और ये बन गया बेटा ऐसे, और ये हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन है, ठीक है ना। और यहाँ पे क्या, यहाँ पे कौन सा चार्ज बेटा चढ़ेगा, ये हाइड्रोजन है। जब इलेक्ट्रॉन दोनों ये ले जाएगा क्योंकि एक्ट करता है इलेक्ट्रोफाइल। अब यहाँ पे जब ये निकलेगा ये नेगेटिव कहाँ आएगा बेटा, ये नेगेटिव आएगा बेटा यहाँ पे, ये बनेगा OSO3H, ठीक है बेटा कि नहीं है, ये बन गया यहाँ पे, ठीक है ना बेटा।
समझ आ रही है बात कि नहीं आ रही? क्योंकि जब ये प्रोटॉन ये यहाँ से जाए या यहाँ से जाए एक ही बात है। तो जब ये एक्ट करता है इसको 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, वो इसने लिए। यहाँ पे कौन सा चार्ज आएगा? पॉजिटिव। पॉजिटिव के पास कौन सा एट अ टाइम आएगा? वो SO3H। ठीक है ना बेटा? ठीक है कि नहीं है? अब देखेंगे इसको क्या करेंगे बेटा, इसको करेंगे हाइड्रोलिसिस। इसको क्या करेंगे बेटा, इसको हाइड्रोलिसिस करेंगे, हीट अप करेंगे, इसको हीट करेंगे इसको। तो इसमें मुझे बताइए यहाँ पे बेटा क्या है? ये है। ये किधर जाएगा? ये कौन सा बॉन्ड बनाएगा इसके साथ? कोऑर्डिनेट बॉन्ड। ठीक है बेटा कि नहीं है? तो जब कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेगा तो ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। ऑक्सीजन जब मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो मुझे बताइए यहाँ पे क्या हो जाएगा? ये लेगा ऐसे। जब ऐसे लेगा तो ये क्या बनेगा बेटा? यहाँ पे ये अब ऐसे रखिए CH3। ये क्या आएगा बेटा? यहाँ पे क्या है? ये CH2। ठीक है ना? यहाँ पे कौन सा चार्ज आएगा? पॉजिटिव चार्ज। ये क्या बन गया? वापस H2SO4। हमारा कैटलिस्ट ये जो है ये वापस निकला। और यहाँ पे इसके पास क्या आएगा बेटा? OH। तो क्या बन गया? CH3 CH2 OH। ये बन गया हमारा इथेनॉल या इथाइल अल्कोहल। ये बन गया हमारा इथेनॉल। ठीक है ना बेटा? ठीक है कि नहीं है? ठीक है ना? ठीक है कि नहीं है? तो ये बन गया बेटा इथाइल हाइड्रोजन सल्फेट बन गया यहाँ पे। फिर इसको हमने क्या की बेटा? ये तो यहाँ से बेटा बन गया ये। ठीक है ना? तो ये आगे फिर से समझाऊंगा। जब H2SO4 लिया तो इसने क्या किया बेटा? इसने प्रोटॉन जब निकल गया तो यहाँ पे आए, यहाँ पे तो इलेक्ट्रॉन 2 ले लिए तो बॉन्ड बनाया। फिर यहाँ से बेटा क्या आ गया? पॉजिटिव चार्ज। उसकी जगह पे कौन आएगा? ये नेगेटिव। तो वो इधर जाएगा तो इधर आएगा। जब हमने हाइड्रोलिसिस की यानी वाटर ऐड किया तो H पॉजिटिव क्या आ जाएगा बेटा? वो किधर जाएगा? H पॉजिटिव। इसके साथ क्या बनाएगा? कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो ये क्या आएगा बेटा? ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रॉनिक। यहाँ पे कौन सा चार्ज आएगा? पॉजिटिव। यहाँ पे क्या आएगा? OH। तो ये बन गया हमारा इथेनॉल। मगर अगर बेटा ऐसे होगा, अब ऐसे नहीं है, अब ऐसे है, अब अनसिमेट्रिकल है बेटा। अब अनसिमेट्रिकल है और यहाँ से बेटा हमने यही लिया HOSO3H यानी यही हो गया ना H2SO4। ठीक है कि नहीं है? मगर ये क्या है? इसको क्या कहते हैं बेटा? प्रोपीन। ये क्या है? ये अनसिमेट्रिकल है। तो यहाँ पे कौन सा रूल फॉलो करेगा? ये मार्कोविन रूल। यहाँ पे कौन सा रूल होगा बेटा? ओबे मार्कोविन रूल। मार्कोविन रशियन केमिस्ट था वो मार्कोविन। वो क्या कहता है? नेगेटिव पार्ट ऑफ द एडेंडम गोज द कार्बन व्हिच हैज लीस्ट नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स। वो बेटा क्या कहता है? वो कहता है कि यहाँ से मैं तो अकॉर्डिंग टू मार्कोविन रूल, ये आपको पता है, according to Markovenko rule, negative part of the addendum. Addendum means which is going to be added. Negative part goes the carbon of short में. The carbon around carbon double bond. Carbon. Negative part the addendum goes the carbon around carbon. Negative part the addendum goes the carbon which has least number of hydrogen atoms. Which has least number of hydrogen atoms. And positive part of the addendum कहाँ जाएगा? goes the carbon which has more number of hydrogen atoms around carbon double bond. ठीक है ना बेटा? मगर कहाँ पे जाएगा? जहाँ पे कार्बन डबल बॉन्ड होगा। तो लीस्ट नंबर कहाँ पे बेटा है? यहाँ। नेगेटिव पार्ट इसमें कौन है बेटा? ये वाला है। तो ये इधर जाएगा। पॉजिटिव पार्ट कहाँ पे जाएगा? अकॉर्डिंग टू मार्कोविन रूल। देखिए आप बेटा। तो इसका मतलब ये जो हमने लिया ये सी, ये बेटा ये है। इसी तरह आप ये भी रखिए ऐसे ही या इस तरह ही सीधा CH2, सॉरी क्योंकि हमें अनसिमेट्रिकल करना है, हमने अनसिमेट्रिकल किया। तो इसका मतलब बेटा ये CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 है। या इस तरह बेटा रख सकते हो आप। ये एक कार्बन, दो कार्बन और तीन कार्बन आ गए इस तरह बेटा। तो यहाँ पे क्या आ गया? ये H और क्या आ गया? OSO3H। ये नेगेटिव, ये क्या आ गया? पॉजिटिव। नेगेटिव पार्ट कहाँ पे जाएगा बेटा? नेगेटिव पार्ट ऑफ द बॉन्ड व्हिच हैज लीस्ट नंबर। पॉजिटिव पार्ट कहाँ जाएगा बेटा? पॉजिटिव पार्ट ऑफ द कार्बन व्हिच हैज मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स। तो ये क्या आएगा बेटा?
वो आएगा CH3CH नेगेटिव पार्ट विच हैज लीस्ट नंबर, वो बनेगा OSO3H, ठीक है ना। और वो क्या बनेगा CH3, क्योंकि जब प्रोटॉन आएगा वो इलेक्ट्रॉन ले जाएगा। जब इलेक्ट्रॉन, क्योंकि यहाँ से प्लस आई इफेक्ट भी है, धक्का भी दे रहा है इसको, तो इलेक्ट्रॉन ये ले जाएगा, तो ये इसका ये बन गया CH3 और ये यहाँ पे आ गया। अब इसको क्या कहेंगे, इसको क्या कहेंगे बेटा, आइसोप्रोपाइल हाइड्रोजन सल्फेट, ठीक है ना, आइसोप्रोपाइल हाइड्रोजन सल्फेट, हाइड्रोजन सल्फेट। अब बेटा इसमें क्या करेंगे फर्दर, अब वाटर जब ऐड करेंगे, वो आपको पता है H2OH नेगेटिव, वो क्या आएगा यहाँ से, वो बनाएगा कोऑर्डिनेट बॉन्ड। अब इस तरह बेटा आएगा, ये आएगा इस तरह CH3CH, वो क्या आएगा OSO3 है, ये CH3 है, वो क्या बनाएगा इसके साथ, कौन सा चार्ज है पॉजिटिव, कार्बन इज मोर इलेक्ट्रोन, ये ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो यहाँ पे क्या आएगा फर्दर बेटा CH3CH ये क्या आएगा नेगेटिव, पॉजिटिव न्यूट्रलाइज हो गया, ये क्या बन गया वापस H2SO4। यहाँ पे कौन सा कार्बोकैटायन जनरेट होगा, 2 डिग्री कार्बोकैटायन। अब हमने जो OH लिया है वो कहाँ जाएगा, वो इधर जाएगा, ये क्या बनेगा CH3CH OH CH3, ये बन गया बेटा 2 प्रोपेनॉल या 2 हाइड्रोक्सी प्रोपेन या आइसोप्रोपेनॉल भी, ठीक है बेटा कि नहीं है। तो ये बन गया हमारा 2 प्रोपेनॉल, ठीक है ना बेटा, इसको नोट कीजिएगा। या इस तरह जो बेटा है, इस तरह जो आपने यहाँ पे देखा कि ये आपको पता है, अब क्या जाएगा, ये जाएगा इधर, ये बनेगा OS, ये इसके साथ जुड़ जाएगा, तो ये खत्म। फिर जब हम इसको क्या करते हैं हाइड्रोलिसिस, तो ये बेटा जाएगा इस तरह, ये बनेगा इस तरह, और वो वापस निकलेगा, ठीक है ना बेटा, ठीक है कि नहीं है। ठीक, देखिए अब इसके बाद मैंने आपको बेटा कहा, इसी में दूसरा पार्ट डायरेक्ट मेथड हाइड्रेशन। अगर हमने यही बेटा लिया C डबल बॉन्ड C, इसको डायरेक्ट हाइड्रेशन करेंगे यानी HOH, हीट करेंगे, तो ये क्या बनेगा बेटा, इसी तरह ये C इसी तरह ये जाएगा प्रोटॉन इसके पास, ये आएगा इस तरह बेटा, फिर क्या बनेगा यहाँ पे बेटा, ये बनेगा C, शाबाश, और क्या बनेगा बेटा, एक ही बात है OH, तो ये बन गया ऐसे CH3CH2OH। तो इथीन से क्या बन गया, अल्कीन से जब हाइड्रेशन करते हैं, अगर अल्कीनों को क्या करते हैं बेटा हाइड्रेशन, हाइड्रेशन, तो वहां से क्या बनते हैं बेटा अल्कोहल्स बनते हैं, वहां से क्या बनते हैं बेटा अल्कोहल्स बनते हैं, ठीक है ना। मगर अगर बेटा इसमें भी आपको अब देगा एग्जाम्पल में इस तरह देगा, यही CH3CH डबल बॉन्ड CH2, इसका नाम क्या है बेटा प्रोपीन, 1 प्रोपीन, इसको क्या करेंगे HOH के साथ, तो क्या आएगा इसमें भी बेटा, नेगेटिव कौन है ये और पॉजिटिव कौन है बेटा ये, तो नेगेटिव पार्ट ऑफ द एडेंडम कहाँ पे जाएगा बेटा, वो जाएगा लीस्ट नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स, वो जाएगा इधर CH3COH, एंड पॉजिटिव पार्ट ऑफ द एडेंडम कहाँ जाएगा, वो इधर जाएगा, ये क्या बन गया बेटा 2 प्रोपेनॉल, ये क्या बन गया बेटा 2 प्रोपेनॉल, ठीक है बेटा कि नहीं, ठीक है ना, इस तरह बनेगा कि नहीं। तो इसमें आप यहाँ पे क्या लिखोगे, अकॉर्डिंग टू मार्कोविक रूल, अकॉर्डिंग टू मार्कोविक रूल, ठीक है बेटा कि नहीं। अगर बेटा इस तरह आएगा, अगर इस तरह नहीं होगा, अब इस तरह होगा CH3 डबल बॉन्ड CH2, ये होगा, इसका नाम पहले जानिए, इसका नाम क्या है बेटा 1 2 3 2 मिथाइल 2 मिथिल प्रोपीन, इसको बेटा अगर करेंगे क्या ऐड वाटर, तो मुझे बताइए क्या होगा इसमें, नेगेटिव पार्ट कहाँ जाएगा बेटा, इधर जाएगा, तो ये क्या बनेगा CH3 नेगेटिव पार्ट जाएगा इधर OH, और पॉजिटिव पार्ट कहाँ जाएगा, क्योंकि लीस्ट यहाँ कुछ नहीं है, नेगेटिव पार्ट पॉजिटिव पार्ट कहाँ जाएगा, इसका नाम क्या आएगा बेटा, इसको क्या कहेंगे 2 मिथल 2 प्रोपेनॉल, 2 मिथल 2 प्रोपेनॉल। ये कौन सा अल्कोहल बेटा बन गया, ये बन गया 3 डिग्री अल्कोहल,
3 डिग्री अल्कोहल। इसको एक और नाम क्या कहेंगे बेटा? टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल, टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल। इसको क्या कहेंगे? टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल। तो ये इस तरह था बेटा, यहाँ पे ये इस तरह है, एक इस तरह दिया था हमने बेटा, ये इस तरह था। तो इसको अगर हमने क्या की, हाइड्रेशन की, H पॉजिटिव OH नेगेटिव, ये आपको पता है ये क्या बन गया बेटा, इस तरह यहाँ पे, और क्या आ गया बेटा, इस तरह भी आ गया, और मगर यहाँ पे क्या आ गया, OH, यानी बॉन्ड लाइन नोटेशन में, बॉन्ड लाइन नोटेशन। ठीक है कि नहीं है? ठीक है ना बेटा? ठीक है कि नहीं है? मगर अगर इस तरह बेटा होगा तो ये आप लिखिए, सो इफ, इसमें लिखिए इफ alkenes undergoes direct hydration, alkenes undergoes direct hydration, formation of alcohols takes place, but in case of, मगर ये याद रखना, but in case of unsymmetrical alkenes, Markovin-Coe's rule is obeyed। ठीक है कि नहीं है? या Markovin-Coe रूल हमें क्या करना है, फॉलो करना है वहां पे, तो वो बनेगा इस तरह। अब अगर बेटा इस तरह होगा, फॉर एग्जाम्पल, अगर बेटा इस तरह होगा, फॉर एग्जाम्पल बेटा इस तरह है, ये वाला है, इसमें है, इसमें आपको कोई कहेगा इसमें आप कीजिए H पॉजिटिव OH, यानी वाटर ऐड कीजिए HOH, तो इसमें क्या होगा? आप कहोगे सर इसमें करेंगे ऐसे, क्या करेंगे इसमें सर? नेगेटिव पार्ट जाएगा इधर। आप कहोगे सीधा, सर अगर ऐसा होगा एग्जाम में, नेगेटिव पार्ट जाएगा इधर और पॉजिटिव पार्ट जाएगा इधर, नेगेटिव पार्ट 20 नंबर और एक मार्कोइन को रूल आप यही कहोगे ना। आप क्या बनाओगे यहाँ पे फिर प्रोडक्ट, CH3 इस तरह करोगे, फिर क्या करोगे, CH, यहाँ पे क्या आएगा, OH, यहाँ पे क्या आएगा, ये नीट में भी आ सकता है, आप इस तरह कहोगे, मगर ये रॉन्ग है। ये क्या है बेटा, ये इसका प्रोडक्ट नहीं देगा। ये इस तरह भी बेटा दिखा सकते हो आप कहीं पे, अगर आपको कोई कहेगा इस तरह, ये फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे 1 2 3 4 1 2 3, और ये बेटा इस तरह है, ठीक है ना। और यही मैंने कहा कि अगर इस तरह H पॉजिटिव और OH नेगेटिव लाएंगे, तो ये देखिए 1 2 3 4 कार्बन, तो इस तरह है, यहाँ पे मिथल, यहाँ पे मिथल, तो आप कहोगे इस तरह, ये इस तरह देगा, ये इस तरह आएगा, फिर आप कहोगे ये भी इस तरह आएगा सर, मगर ये क्या है, ये रॉन्ग है। अब देखेंगे क्यों, इसको नोट कीजिएगा। देखिए बेटा क्यों, इसमें जो हमने ये लिया, पहले इसका नाम देखेंगे, ये जो है CH डबल बॉन्ड CH2, नाम क्या आएगा, क्या आएगा बेटा नाम, 3,3 डाइमिथल डैश 1 क्या है, 1 ब्यूटीन। तो इसको अगर बेटा किसके साथ ट्रीट करेंगे, H पॉजिटिव OH नेगेटिव के साथ, जो हमने बनाया वो नहीं बनता है। यहाँ पे बेटा क्या होगा, यहाँ पे मिथाइल शिफ्ट होगा, क्या होगा, यहाँ पे बेटा क्या होगा, इसमें बेटा होगा मिथाइल शिफ्टिंग, यहाँ पे मिथाइल शिफ्ट होगा। तो उससे क्या होगा बेटा, मुझे बताइए, मिथाइल शिफ्ट जब होगा तो उसकी वजह से क्या होगा बेटा, अगर मिथाइल शिफ्ट होगा तो उसकी वजह से क्या होगा, यहाँ पे बेटा, यहाँ पे कौन सा कार्बोकैटायन बनेगा, फिर 3 डिग्री कार्बोकैटायन बनेगा, वो क्या होता है बेटा, स्टेबल, तो ये इस तरह बनेगा CH3, ठीक है ना। तो यहाँ पे जब ये शिफ्ट हो जाएगा, यहाँ पे
ये जो है बेटा ये शिफ्ट हो जाएगा इधर, तो यहाँ पे ये बनेगा, ये क्या बनेगा बेटा CH, ये क्या आएगा बेटा CH3, ये क्या है यहाँ पे बेटा डबल बॉन्ड CH2। तो मुझे बता बेटा, हाँ ये हम इसमें ये आएगा इधर बेटा, जब ये इधर जाएगा तो ये बेटा आएगा इस तरह, ये इस तरह आएगा बेटा। तो मुझे बताइए ये कहाँ जाएगा बेटा, ये जो OH है वो कहाँ जाएगा, ये 3 डिग्री कार्बोकैटायन यहाँ पे बन गया तो ये इधर जाएगा, ये आएगा CH3, ये क्या आएगा OH, ये क्या बन गया CH3। ठीक है बेटा कि नहीं है, ठीक है कि नहीं है, बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही, ठीक है ना, इसको नोट कीजिएगा।